6 मार्च को असेंबली में हम लोग जाएंगे। उनका सामने में हम हमारा जो मांगे रखेंगे कि असेंबली वही असेंबली दिन में हमारा ये जो ईसाई का खिलाफ जो कानून बनाने जा रहा है वो दिन को असेंबली में रिपील करना चाहिए। डियर मीडिया फ्रेंड्स, दिस press conference is related to the matter that the government announcement to the Freedom of Religion Act of 78 in the state of Arunachal Pradesh, which is keeping dormant since 46 years. The mob of the present government to implement this draconian law is unconstitutional, antichrist, and against the spirit of secularism. From the very day of 1979, Arunachal Christian Forum has been opposing this bill to repeal in Arunachal Pradesh. But on 27th December of 2024, in a social gathering, the Honorable CM of Arunachal Pradesh has made an announcement to implement this law in Arunachal Pradesh. To this effect, the various denomination leaders of Arunachal Christian Forum conducted series of meetings, and they have decided to oppose this bill tooth and nail, and that they have decided to organize a democratic movement to oppose this bill. The first democratic movement will be like this. From 10th February to 17th February, we have decided to keep prayer fasting week. As we know, no power of universe is mighty and powerful than the power of prayer and the fasting. We, in this connection, as a president of Arunachal Christian Forum, I, Shri Tar Miri, made this announcement with appeal to the believers, to the faithfuls of Christian community of Arunachal Pradesh for their to follow the instructions as given below. In the name of the God and for the sake of Christianity, every Christian must follow. All the Christian must strongly and compulsorily participate in the week-long prayer and fasting. That is with effect from 10 to 17 February 2025 as per the circulation given to all. All the district block Arunachal Christian Forum unit must immediately call a meeting and pass clear instructions. Every believer must sacrifice his time for the sake of religion, existence and life. Every Christian must sacrifice his energy for the sake of religion, existence and life. Every Christian must sacrifice his materials for the sake of religion and existence of life. This is a very crucial moment. So every Christian must avoid festivities, birthday celebrations, picnic parties, tours, meetings and other social and political celebration during the prayer and the fasting week. After that, in the second page, we have proposed hunger strike on 17th February in tennis court in the Indira Gandhi Park, Itanagar. After that, on 6th February, we have decided to घेराव the State Assembly on 6th March 2025. Thank you all. 6 मार्च को असेंबली में हम लोग जाएंगे कि उनका असेंबली को उनका सामने में हम हमारा जो मांगे रखेंगे कि असेंबली वही असेंबली दिन में हमारा ये जो ईसाई का खिलाफ जो कानून बनाने जा रहा है वो दिन को असेंबली में रिपील करना चाहिए। हमने सीएम साहब को मिलने के लिए कई बार जो परमिशन है उनको मिलने के लिए कोशिश किया। उन्होंने लिख के उनका जो सलाहकार श्रीमान आलो लिबांग जी को 2 बार लिख के दिया है हमसे मिलने के लिए। हमने उनको मिला और उन्होंने भी लिखा, लेकिन
अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया। मेरी सर नहीं समझा मतलब सीएम साहब आपको तो सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया यस, उसने इसको उसने he has साइन assigned his advisor Sri Alolibang to address the issue. ओके तो उसका आउटकम क्या था? Alolibang has given our grievances, submitted grievances to Honorable Chief Minister, but so far no action has been communicated to us. ये क्योंकि अभी जो आप लोग जो धरना प्रदर्शन का बात कर रहा है और घेराव का बात कर रहा है तो वो शायद आपका शुरू हो रहा है 6 तारीख से। हाँ जी, तो आजकल ईटानगर पहले जैसा नहीं है, सिस्टम थोड़ा बदल गया, आपको भी शायद मालूम है क्योंकि आप लोग काफी बार धरना प्रदर्शन पहले भी किया है। तो जैसे क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का बात किया आपने, पेमा खांडू जो चीफ मिनिस्टर साहब का स्पीच को सुनकर के व्यक्त कर रहे हैं, आपने मुख्यमंत्री को मिलने का कोशिश किया, एडवाइजर को मिला। तो ये घटना जो कब आते हैं, एडवाइजर को मिला और अपने अपने ग्रीवेंस पुट अप किया और अभी तक आपको कुछ खबर नहीं मिला? यस, हमने 14 नवंबर 2024 को हमने मुख्यमंत्री का ये बिल रिफिल करने के लिए जब कोर्ट से ऑर्डर आते ही ना, उनको हमने हमारा जो ज्ञापन सौंपा है मेमोरेंडम रिफिल के लिए। उसके बाद 20 जो नवंबर को हमने चीफ सेक्रेटरी को मिला है। उसके बाद हमने फिर से जो 11 नवंबर को सीएम साहब से हमने समय मांगा है, सीएम साहब आलोलीबंग जी को दिया है मिलने के लिए, हम उसमें मिला है। फिर उसका बाद रिसेंटली आई थिंक the 28th of this month again we have met the honorable advisor to honorable chief minister of Arunachal Pradesh, उनको मिला है। आप ये लोगों को बहुत सारा ये लॉ जो है एंटी कन्वर्सन लॉ है। एंटी कन्वर्सन का अर्थ होता है यहाँ बनता नहीं है, यहाँ फोर्सफुल कन्वर्सन का यह बात करता है, कोई फोर्सफुल कन्वर्सन यहाँ नहीं होता है। और अरुणाचल में कन्वर्सन का कोई नाम में नहीं होता है, होता भी नहीं है। अर्थ जो कन्वर्सन मीन्स किसी धर्म से किसी धर्म को जाना, हिंदू चाहे मुस्लिम बना, मुस्लिम चाहे हिंदू बना, तो वो कन्वर्सन है। लेकिन जो अरुणाचल इंडिजिनस लोग के लिए या मेरा ख्याल से स्पेसिफाइड रिलीजन या धर्म या नहीं है। और जो अरुणाचल का कोई भी इंडिजिनस ईसाई में बना है तो दे हैव एक्सेप्टेड क्राइस्ट, दे हैव नॉट कन्वर्टेड, दे आर नॉट कन्वर्टेड but they have accepted Jesus Christ. अच्छा, ये जो आप इंडिजिनस का जो बात कर रहे हैं, इंडिजिनस जो दोनों को लोग वैत वाला को बोल रहे हैं ना, कोई और धर्म वाला को बोल रहे हैं? नहीं, इंडिजिनस मीन्स मैं आपको क्लियर थोड़ा सा जानना चाहता था कि आप इंडिजिनस का बात कर रहे हैं, इंडिजिनस को दूसरा स्टेट से आया वाला है ना, अरुणाचल प्रदेश का जो दोनों को प्रैक्टिस पहले करता था वो बना। लेकिन देखिए, मैं ईसाई तो भी इंडिजिनस है, मैं कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, मैं भी अरुणाचल का इंडिजिनस है और कुछ दूसरा इंडिजिनस होता नहीं है, होता नहीं। तो आप इंडिजिनस जो बॉडी को प्रैक्टिस करने वाला जो क्रिश्चियनिटी या दूसरा धर्म में नहीं आने को क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यू सी, कन्वर्सन किसको बोलता है? कोई धर्म एक धर्म से दूसरा धर्म में जो जाने वाला को उसको तो परिवर्तन बोलता है, उसको तो कन्वर्सन बोलता है ना। हम कन्वर्सन नहीं है, हम मानने वाला है। कन्वर्सन और एडॉप्शन में अंतर होता है। मेरे साथ लेकिन बहुत सारा लोग सेम साथ भी बोल रहे हैं इस लोग क्रिश्चियनिटी के चर्च में ये एक्चुअली हर धर्म फॉर एग्जांपल मैं धोनी को दीवार मैं को मेरे लिए होगा ये बोला है। उसके बारे में वो बोले कि
लेकिन ये वैसा बात नहीं है। ये जो है जहां भी है अरुणाचल भारत सारा भारत में 10 तो जैसा राज्य में ये बिल लागू किया है। और ये बिल जो इनेक्ट किया है ना, उस बिल में अगर कोई भी प्रभावित लोग है तो कोई भी जो अफेक्टेड है तो वो ईसाई है सिर्फ, वो क्रिश्चियन है सिर्फ। एंड दिस इज मीन फॉर द क्रिश्चियन एंड हियर इन दिस बिल others are safe, other indigenous are safe, but it is a very say a threat for the Christian believers.